أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا سبق نمبر ہے 10. آج ہم نیا ٹاپک پڑھیں گے. اسکرین شیئر کر لو میں آپ کو. آج ہم پڑھیں گے عدد. کہ عدد کیا ہوتا ہے, عدد کسے کہتے ہیں. چیزوں کو گننا, گنتی کرنا, گنتی کر کے پتہ کرنا کہ کتنی چیزیں ہیں. یعنی چیزوں کو گننا, تعداد معلوم کرنا. ٹھیک ہے, جب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کتنی چیزیں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم گنتے ہیں, گنتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو گنتی کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں, یہ ایک چیز ہے, یہ دو چیزیں ہیں, یہ زیادہ چیزیں ہیں. مطلب تو جو ایک چیز ہوتی ہے اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں واحد. واحد. ایک چیز کو اردو میں واحد کہتے ہیں. واحد. دو یا دو سے زیادہ چیزیں ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع. یعنی عدد دو قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عدد آپ کو عدد دو طرح کا ملے گا, واحد اور جمع. اگر کسی چیز کی تعداد ایک ہوگی تو اس کو ہم واحد لکھیں گے. اگر کسی چیز کی تعداد دو سے زیادہ ہوگی تو اس کو ہم جمع لکھیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ واحد کون کون سا ہوتا ہے, واحد کو ہم کیسے جمع بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر کے لکھتی ہوں تاکہ آپ کو نا صحیح سے نظر آئے, نیچے بھی ہم کچھ لکھ سکیں. سب سے پہلے تو ہو گیا ہمارا موضوع, آج کا سبجیکٹ, آج کا ٹاپک عدد. ٹھیک ہو گیا. ہم نے پڑھا کہ عدد دو طرح کا ہوتا ہے, واحد اور جمع. ٹھیک ہو گیا. اب واحد کتاب, ایک کتاب ہے تو اس کو وہ واحد ہے. ٹھیک ہے. یہ کتاب. ٹھیک ہو گیا. کتاب جو ہے واحد ہے. اس کو ہم جو زیادہ ہوں گی تو ہوں گی کتابیں, کتب. ٹھیک ہے. بیسک میں ہم اس کو کتابیں کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کتب جو ہے وہ ذرا آگے جا کے آپ کو سمجھ آئے گا, کتب جمع مکسر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کتاب کی جمع کتابیں بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور ویسے کتب بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, جیسے کتاب, کتاب, اور اس کے ساتھ ہم نے یہ اور نون یہ ایڈ کرنا ہے. تو یہ بن جائے گا کتابیں. ایک کتاب, اس کو جمع کیا کتابیں. ٹھیک ہے. کیسے لکھیں گے, کتاب کو لکھا, آخری جو حرف ہوگا واحد کا اس کو ہم ہاف لکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے یا اور نون کا اضافہ کر دیں گے. نون غنہ, بغیر نقطے کے جو نون ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں نون غنہ. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہم اس طرح سے کریں گے. ٹھیک ہے. یا اور نون کا اضافہ کریں گے. ایک اور ہے
ये किताब, दूसरा लफ्ज लिखती हूँ, इसको मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। अभी दूसरा लफ्ज लिखती हूँ कि कुर्सी। ठीक है, कुर्सी। कुर्सी, अब कुर्सी की हमने जमा कैसे बनानी है? कुर्सी लिखेंगे, ठीक है, या जो है उसको हम हाफ लिखेंगे तो हम इस तरह लिखते हैं ना, ये हम पढ़ चुके हैं कि या जब दरमियान में आएगी तो कैसे लिखी जाएगी। और उसके साथ हमने एक अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करना है। ठीक है, कुर्सियां, कुर्सी, एक कुर्सी, कुर्सियां ज्यादा होंगी तो उनको हम कहेंगे कुर्सियां। ठीक हो गया? ये अल्फाज आपने पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं उन्हीं की मिसालें दे रही हूँ जो आप पहले पढ़ चुके हैं। खिड़की, खिड़की की जमा बनाएंगे खिड़, ये लास्ट वाला, ठीक है, काफ या और अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करेंगे तो क्या बन जाएगा? खिड़कियां। ठीक हो गया? खिड़की, खिड़कियां। अब एक और लफ्ज लिखते हैं, उसकी जमा देखते हैं कैसे बनेगी। स्कूल, एक स्कूल। स्कूल की जमा क्या होगी? स्कूल को ऐसे लिख लेंगे, वाओ। अब स्कूला नहीं हमने करना कि स्कूल अलिफ और नून लगा देंगे, हम कहेंगे स्कूला हो जाएगा, नहीं। कुछ लफ्जों की उस तरह से बनेंगे, कुछ की इस तरह से बनेंगे कि वाव और नून गुन्ना का इजाफा करेंगे तो बन जाएगा स्कूलों। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि स्कूलों में छुट्टियां, तमाम स्कूलों में छुट्टियां हैं, ठीक है ना, तो उसकी जमा उसको कैसे लिखेंगे हम? स्कूलों को स्कूल लिखेंगे, फिर वाव और नून का इजाफा कर देंगे तो स्कूल की जमा बन जाएगी स्कूलों। ठीक है, अच्छा एक और, कॉपी, नोटबुक जो होती है, तो जो कॉपी की जमा होगी वो होगी का पी, अलिफ का इजाफा, नून गुन। ठीक हो गया? ज्यादा होंगी तो उसको हम कहेंगे कापियां। ये तो होगी चीजों की, कि चीजों को हमने कैसे जमा करना है। ठीक है, कि वाहिद से जमा बनाने के लिए वाहिद इसम के आखिर में कुछ हरूफ का इजाफा किया जाता है। कौन से हरूफ का इजाफा किया जाता है? ये मैं लिख के बता देती हूँ, एक मिनट। पहले तो आप लिखेंगे कि एक को वाहिद कहते हैं, एक चीज को वाहिद कहते हैं। ठीक है, एक से दो से ज्यादा चीजें होंगी तो उसको जमा कहते हैं। ठीक है, और फिर वाहिद से जमा कैसे बनाते हैं? वाहिद से जमा बनाने के लिए वाहिद इसम के आखिर में कुछ हरूफ का इजाफा किया जाता है। कौन से हरूफ का इजाफा किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। अलिफ और नून का कुछ अल्फाज में इजाफा होगा, कुछ में या और नून गुन्ना का इजाफा होगा, और कुछ में वाव और नून गुन्ना का इजाफा होगा। ये तीन तब्दीलियां आएंगी वाहिद के आगे जब हम लगाएंगे ये हरूफ, तो वाहिद जमा बन जाएगा। ठीक है, मिसालें मैंने आपको दी, आप और भी मिसालें आप ले सकते हैं, लेकिन तरीका आपने यही रखना है कि वाहिद इसम के आखिर में अलिफ नून या नून और वाव नून का इजाफा करने से वाहिद जमा बन जाएगा। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज आपको बतानी है कि अच्छा ये तो हो गया कि जिन जो मैंने आपको मिसालें दी हैं कि उन अल्फाज को, इस तरह के जो अल्फाज होंगे उसको आपने ऐसे उनके आखिर में ये इजाफा करना है इन हरूफ का, और आपने जमा बनाना है। और कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी आपने उसमें थोड़ी सी चेंज आती है। वो कौन से हरूफ है? मसलन कमरा, ठीक है ना, रूम, जो कमरा, इस जिसके आखिर में हे आती है, उन अल्फाज की हमने कैसे जमा बनानी है। कमरा है तो उसमें हम हा की जगह या लगाएंगे, कमरे भी हो सकता है। और अगर हम या की बजाय, जैसे हम कह रहे हैं कि कमरों में चले जाओ, कहते हैं ना, बोलते हैं हम सेंटेंस में, सेंटेंस के हिसाब से फिर जमा बनेगी। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि मेरे कमरे में जो है सफाई होने वाली है, या मेरे कमरे में मेरा बेड है, तो हम यहाँ ये लगाएंगे। अगर हम कहते हैं कि सब कमरों में चले जाओ, तो फिर हम वाव और नून का इजाफा करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह सेंटेंस होगा उसके हिसाब से हमने जमा बनाने के लिए जो मैंने ऊपर अल्फाज बताए हैं वो हमने ऐड करने हैं आखिर में, वाहिद के आखिर में वो लगाने। ठीक है, तो ये एक उसमें तब्दीली आएगी। ठीक है ना, जिसके आखिर में हा होगा कि उसमें बड़ी ये भी लग सकती है, वाव और नून भी लग सकते हैं। दोनों तरह से आपने उसको बनाना है, वाहिद वाहिद को जमा बनाना है। ठीक है, ये तो चीजें थी। फिर हम आगे जाएंगे तो हम दूसरे जो है उसको भी करेंगे कि वाहिद से हम जमा कैसे बनाते हैं। जिन्स जब हम पढ़ेंगे उसमें फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि जो जैसे जिन्स से हम वाहिद जिन्स और फिर उसको जमा में लेके जाएंगे तो वो कैसे हम करेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा इतना ही है कि अदद किसे कहते हैं। ठीक है, और अदद कितनी किस्म का होता है? दो किस्म का होता है, वाहिद और जमा होता है। और वाहिद को जमा कैसे बनाते हैं? वाहिद इसम के आखिर में अलिफ नून, नून गुन्ना, या नून गुन्ना और वाव नून का इजाफा किया जाता है। जिन अल्फाज के आखिर में हा आती है उसमें हम बड़ी ये लगाते हैं जमा बनाने के लिए, या वाव और नून गुन्ना का इजाफा करते हैं, हे को हटा देते हैं, वाहिद इसम से हे को हटा देते हैं और बड़ी ये लगाते हैं, तो वो जमा बन जाती है। ठीक है, यानी हे को हटा के बड़ी ये लगाएंगे या वाव और नून का इजाफा करेंगे तो हे वाले जो अल्फाज होंगे वो जमा बन जाएंगे। ये था वाहिद से जमा बनाने का तरीका। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर जो मैं होमवर्क दूंगी वो करके आपने ग्रुप में भेजना है। तो आज का हमारा लेसन इतना ही था। तो मैं दुआ पढ़ लेती हूँ और फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।